So in the previous class we have started the discussions based on the questions. So again we are starting with the questions directly. Previous class I have given this question for you to solve. Cos square theta plus alpha minus 2 cos theta cos alpha cos theta plus alpha. That expression, yeah, that trigonometric function is independent of theta, that you have to prove. Independent of theta, that means the final result is going to be in terms of, is going to be free from theta. The final result could be in terms of alpha or some constant, but final result, in the final result theta must not appear. थीटा अपीयर नहीं होना चाहिए, है ना. तो cos square theta plus alpha minus 2 cos theta cos alpha cos theta plus alpha is independent of थीटा. ऐसा प्रूव करना आपको. देखिएगा, cos square theta plus if I take cos square theta plus alpha is there. अच्छा, एक क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए यहाँ पर कई अलग अलग अप्रोच हो सकती है, बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा. किसी एक क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कई सो मेनी डिफरेंट अप्रोच कुड बी देयर. लेट्स से चलिए cos square theta plus alpha minus 2 cos theta cos alpha into cos theta plus alpha. So 2 cos theta cos alpha, I can apply here the formula. Which formula? 2 cos A cos B. 2 cos A cos B we can apply here. 2 cos A cos B. How can, what is the formula there? 2 cos A cos B. Formula list सभी अपने सामने खोल सकते हैं, लेकिन you are not preparing the formula, that's not good. 2 cos A cos B, that is nothing but cos A plus B plus cos A minus B, right? ये भी मैंने आपको क्लियर किया था कि रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई फिक्स अप्रोच नहीं होगी कभी भी. देयर कुड बी सो मेनी अप्रोच टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. तो आपको रटने वाली कोई बात नहीं होती. यू विल हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. हो सकता है कुछ अप्रोच से छोटे में हो जाए, कुछ से थोड़ा सा लेंदी हो, लेकिन आपको अटेम्प्ट तो करना होगा ना अपने लेवल पे. सो cos square theta plus alpha minus of 2 cos theta 2 cos alpha minus 2 cos theta alpha cos alpha. I have written here cos A plus B plus cos A minus B multiplied with cos theta plus alpha, right? It is cos square theta plus alpha, these two terms as it is, minus of, पहले देख लीजिए उसके बाद नोट कीजिए. This cos theta plus alpha is multiplied into this bracket. The cos theta plus alpha, when it is multiplied to this bracket, it will become cos square theta plus alpha with minus sign because it is there in front of that bracket. Cos theta plus alpha into cos theta plus alpha will become cos square theta plus alpha, again with minus sign. Cos theta minus alpha into cos theta plus alpha, right? Cos square theta plus alpha is cancelled, then cos square theta plus alpha cancel हुआ. जो टर्म्स रिमेनिंग टर्म्स हैं, दोज आर cos square theta. दिस इज cos square theta minus of cos theta minus alpha cos theta plus alpha. Cos A plus B into cos A minus B, डायरेक्ट फॉर्मूला इज देयर. बिना फॉर्मूले के तो कुछ कर ही नहीं सकते ट्रिगो में. बार बार यही समझा रहा हूं मैं, बट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, वो गलत बात है. cos A plus B into cos A minus B, cos square A minus sin square B. cos A plus B into cos A minus B is cos square A minus sin square B. cos square theta यहाँ पर कैंसिल हो गया. माइनस माइनस प्लस, it is sin square alpha. The final result which you are getting here is sin square alpha. Sin square alpha, that means it is free from theta, is independent of theta. The final result which you are getting is independent of theta, sin square alpha. Then now the question is, these three terms, sin of z plus y minus x, sin of x plus z minus y, sin of y plus x minus z, these three terms be in AP, and you have to prove that tan x, tan y, tan z
are also in AP. 3 terms are given in AP. So 3 terms are given in AP. I can definitely write, if A, B, C are there in AP, then B minus A is equals to C minus D. That means sine of x plus z minus y minus of sine z plus y minus x. A, B, C अगर AP में है तो B minus, common difference will remain same, कुछ खास बात नहीं. Sine of y plus x minus z minus of sine z plus y, sorry, x plus z minus y. ठीक है, sin of x plus z minus y minus of sin z plus y minus x is equals to sin y plus x minus z minus of sin x plus z minus y. ठीक है, then we are going to apply the formula again. बिना फॉर्मूले के तो बात आगे बढ़ती ही नहीं है. b minus a equals to c minus b तो किया आपने, ठीक है. sin a minus sin b, then you are going to apply here sin a minus sin b, that formula is there. sin a minus sin b है ना, तो sin a minus sin b जब आप अप्लाई करोगे, that is going to be 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2. so 2 cos a plus b by 2. अगर डायरेक्टली अगर हम लिखे तो भी शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए. 2 cos a, चलिए समझाने के लिए लिख देता हूं यार मैं, a plus b by 2 a plus b by 2 sin, this is a minus b by 2. ठीक, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला अप्लाई किया आपने. अगेन साइन ए माइनस साइन बी, 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2. ठीक, चेक कर लीजिए फॉर्मूला ठीक ढंग से अप्लाई किया गया. sin a minus sin b, 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2. दिस इज एंगल a, दिस इज एंगल b, दिस इज एंगल a, एंगल b. आपने अप्लाई किया फॉर्मूला, ठीक है. व्हाट इज हैपनिंग हियर, दैट y is getting cancelled here as well as x is also getting cancelled here. what you are getting, 2z by 2 which is z. ये 2 से 2 भी कैंसिल हुआ, cos z into sin, ये z कैंसिल हुआ, सॉरी नॉट y, x 2 टाइम्स हो जाएगा, y भी 2 टाइम्स हो जाएगा. आई कैन डेफिनेटली राइट इट ट्वाइस ऑफ x minus y by 2. what you are getting is sin of x minus y. look here, it is z minus z plus z, y is also getting cancelled here, 2x divided by 2 x. ठीक, x and minus x, ये x कैंसिल होगा, it will become 2y minus 2z sin of ठीक. so it will become cos z into sin of x minus y is equals to cos x into sin of y minus z. cos z sin a cos b minus cos a sin b, that will be equals to cos x into sin a cos b minus cos a sin b. फाइन, कुछ नहीं, sin a minus b, that formula we applied here, sin a minus b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. ठीक,
cos z is multiplied in the bracket as well as cos x is multiplied in the bracket. पहले समझ लीजिए, बाद में लिखिएगा. sin x cos y cos z minus sin y cos x cos z is equals to sin y cos x cos z minus of cos x cos y sin z. ठीक. What do you want? वो तो हो गया कार्यक्रम. What do you want? You want 10x 10y 10z are also in AP. अब 10x 10y 10z के टर्म्स में लेके आना है, तो 10x 10y 10z के टर्म्स में लाना है. If you observe it carefully, if you divide it 10 के टर्म्स में लाना है, divide by cos x cos y cos z. पूरे एक्सप्रेशन को cos x cos y cos z से डिवाइड कर दो. cos x cos y cos z से डिवाइड करो. तो cos x cos y cos z से जब डिवाइड करोगे, cos y cos z कैंसिल होगा. sin x बाय cos x 10x, cos x cos z कैंसिल होगा. sin y बाय cos y 10y. cos x cos y cos z से डिवाइड किया, sin y बाय cos y 10y माइनस ऑफ cos x cos y cos z sin z बाय cos z 10z. Observe here, 10x minus 10y equals to 10y minus 10z. Common difference is same there. We can definitely comment that okay, 10x 10y 10z are there in AP. AP में तभी तो उनके common differences सेम है. ABC अगर AP में है तो 2B can be written as A plus C. You are getting 2B is equals to A plus C there. We can definitely conclude that okay, A, B, C are there in AP when 2B is equals to A plus C. Same is happening here. ठीक है. तो किया क्या आपने? 3 terms are there in AP, उनके common differences सेम थे. क्यों इस फॉर्म में लिखा? द रीजन इज साइन ए माइनस साइन बी आप अप्लाई कर पाओ. कर दिया आपने साइन ए माइनस साइन बी, प्रॉपर्ली फॉर्मूला अप्लाई किया. ठीक है. फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो पोजीशन है वो ये है कि cos z इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू cos x इंटू साइन ऑफ y माइनस z. साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला फिर से ओपन किया अपन ने. यहाँ पर cos z को मल्टीप्लाई किया, इधर cos x को मल्टीप्लाई किया. वी वांट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ 10x 10y 10z. तो cos x cos y cos z से डिवाइड किया. If alpha plus beta is equals to gamma, if alpha plus beta is equals to gamma, and you have to prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1 plus 2 cos alpha cos beta cos gamma. ठीक. Now look for this question. Alpha plus beta has been given as gamma. LHS से भी RHS लेके बताते हैं हम लोग, और RHS से भी LHS बता देता हूँ. आपको तो अंडरस्टैंडिंग ठीक होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है. देखिएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा. इफ यू ऑब्जर्व, डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर. cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b टाइप का कोई फॉर्मूला तो कुछ है नहीं. हमने क्या किया? इफ आई एम सॉल्विंग दिस LHS, cos स्क्वायर अल्फा plus cos square beta plus cos square gamma. Alpha plus beta is gamma. फॉर्मूले आपको सब अप टू डेट है, फॉर्मूले बहुत कंफर्टेबल हैं आप. तो आपने क्या किया कि cos square अल्फा प्लस cos square बीटा, cos square बीटा को आपने लिखा 1 माइनस sin square बीटा. क्यों? The reason is the formula is available to you is cos square a minus sin square b. cos square a minus sin square a नहीं, cos square a minus sin square a, that is cos 2a. One of the formula is sin square a minus sin square b, which is sin a plus b sin a minus b. और जो cos a plus b into cos a minus b की जब बात करते हैं, that formula is for cos a plus b into cos a plus b into cos a minus b is cos square a minus sin square b. cos square a plus cos square b plus cos square c का मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैंने cos स्क्वायर बीटा को उठा के लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, सो दैट 1
one is there in the result. Cos square A minus sin square B, that formula is available to us. 1 plus cos A plus B cos A minus B plus cos square gamma, right? 1 plus alpha plus beta has been given as gamma. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गामा दी हुई है आपको, तो cos अल्फा प्लस बीटा, तो दैट विल बी cos गामा, इट इज cos स्क्वायर गामा. cos gamma we have taken common, ठीक. cos alpha minus beta plus cos gamma. Alpha plus beta has been replaced by gamma, so it will be cos gamma into cos alpha minus beta plus cos square gamma. So cos gamma I have taken common, so it will be cos alpha minus beta plus cos gamma, ठीक. बोले सर अब क्या करें? cos A plus cos B. रिजल्ट को अगर आप ऑब्जर्व चलते करें तो 1 plus 2 cos alpha cos beta cos gamma. देखो 1 plus cos gamma is there. रिजल्ट के काफी नजदीक है हम लोग. cos A minus B cos alpha minus beta plus cos gamma, we are going to apply the formula here as cos A plus cos B, or cos A plus cos B 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2, राइट. अभी क्या करना है अपने को? अल्फा प्लस बीटा हैज बीन गिवन एज गामा, उसको जरा यहाँ पर यूज कर लीजिए. गामा को रिप्लेस कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा से. गामा को अगर आप अल्फा प्लस बीटा से रिप्लेस करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा से रिप्लेस करेंगे तो गामा, अल्फा प्लस बीटा से रिप्लेस किया तो बीटा कैंसिल हो जाएगा. 2 अल्फा बाय 2 cos अल्फा. अरे भैया इस गामा को भैया अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए प्लीज. इस गामा को अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए. अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कैंसिल होगा, ये बीटा आएगा. cos माइनस थीटा इज ऑलरेडी नोन टू यू इज cos थीटा. रिजल्ट इज 1 plus 2 cos अल्फा cos बीटा cos गामा. दैट इज अ प्रोसीजर. फिर से देखिए क्या किया हमने. cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C, हमने जब क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया हमने तुरंत देखा कि हमारे पास कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है. जो रिजल्ट अवेलेबल है वो है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B. तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, दैट रिजल्ट इज अवेलेबल विथ अस. तो हमने क्या किया है, cos स्क्वायर बीटा दैट वी हैव कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा. द रीजन इज सो दैट मैं यहाँ पर अप्लाई कर पाऊँ इसमें cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B एज cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B, है ना. तभी तो मैं इसमें अप्लाई कर पाऊंगा cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B. अल्फा प्लस बीटा इज गामा, cos गामा, cos स्क्वायर गामा. आई हैव टेकन cos गामा कॉमन, सो इट इज cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos गामा. आप चाहें तो यहाँ पर गामा की वैल्यू प्लेस कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा, या बाद में प्लेस कर दीजिए. cos A plus cos B has been applied there. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया है? तो cos A plus cos B, 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2. फॉर्मूला अप्लाई किया, देन वी हैव प्लेस्ड द वैल्यू ऑफ गामा एज अल्फा प्लस बीटा अगेन. गामा की वैल्यू को अल्फा प्लस बीटा फिर से लिख दिया गया, एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट. नाउ इफ आई प्रूव द सेम क्वेश्चन फ्रॉम right hand side, 1 plus 2 cos by taking the right hand side, that right hand side is, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, आपको अप्रोच एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या किया जा सकता है. 2 cos अल्फा cos बीटा cos गामा. Definitely by observation itself you are getting alpha plus beta is already gamma, that is okay. By observation itself you are getting the idea that you are going to apply 2 cos A cos B first.
सबसे पहले आप 2 cos A cos B अप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस 2 cos A cos B इज नथिंग बट cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई किया, फाइन। पहले देख लीजिएगा, 1 प्लस इट इज cos गामा, देखो अल्फा प्लस बीटा हैज बीन केप्ट एज गामा और फिर cos गामा से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, cos गामा इंटू cos गामा, cos स्क्वायर गामा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इंटू cos गामा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस ऑल द स्टेप्स आई एम राइटिंग हियर केवल इसलिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत नहीं हो। cos अल्फा माइनस बीटा इंटू cos गामा को लिखा मैंने अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा इंटू cos अल्फा प्लस बीटा। अगेन यू आर गेटिंग द फॉर्मूला cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, विच इज नथिंग बट, काम खत्म हो गया, इट इज cos स्क्वायर गामा देयर, cos स्क्वायर अल्फा देयर और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर बीटा हो जाएगा। That is the result. Now the question is, if cos A is equals to m times cos B, you have to prove that cot A plus B by 2 is equals to m plus 1 upon m minus 1 tan B minus A by 2। जो गिवन इंफॉर्मेशन है cos A equals to m times cos B और प्रूव करना है cot A plus B by 2 is equals to m plus 1 upon m minus 1 tan B minus A by 2। what you suggest क्या किया जाना चाहिए? if you just observe the result और जो आपको प्रूव करना है उस रिजल्ट को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, what you are going to do then? अच्छा, m is equals to cos A by cos B, okay fine, ठीक है। you want to keep that m is equals to cos A divided by cos B, ठीक है, then in that case you are going to take the right hand side, you are going to take the right hand side, right hand side is m plus 1 upon m minus 1 tan B minus A by 2, you are going to keep the value of m as cos A by cos B, yes you can keep, ठीक सोच रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कुछ भी गलत नहीं, बढ़िया, cos A by cos B, cos A by cos B प्लेस किया आपने, take the LCM, after taking the LCM in the numerator it will be cos A plus cos B, in the denominator it is cos A minus cos B, and then finally cos A plus cos B upon cos A minus cos B, both the formulas are available with you, cos A plus cos B, 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2, cos A minus cos B, 2 sin A plus B by 2 sin B minus A by 2, and that is the reason that here it is tan B minus A by 2, cos minus theta is always cos theta, when you solve that, yes you are going to get this, that's a perfect approach, कोई problem नहीं है इसमें। in the right hand side what you have suggested it that okay please keep the value of m sir, m is equals to cos A by cos B, रख सकते हैं आप, LCM लीजिए, cos A plus cos B न्यूमरेटर में अप्लाई कीजिए, cos A minus cos B डिनोमिनेटर में अप्लाई कर दीजिए और रिजल्ट आएगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव यू द वन मोर अप्रोच हियर, एक और अप्रोच देता हूँ मैं आपको, वो ओके ठीक है ना, क्या समझाया, समझ में आ गया ना, क्योंकि ट्रिगो है ना, देयर कुड बी सो मेनी अप्रोच देयर, जब आप ट्रिगो के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो कोई एक रटी रटाई सी अप्रोच नहीं होगी, यहाँ पे देयर कुड बी मेनी अप्रोच टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल है। और कभी हो सकता है कि जो मैं आपको अप्रोच सजेस्ट कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा लेंदी और आप जो सोचे वो आसान हो, ये हो सकता है।
ऐसा होना चाहिए तो अच्छा लगेगा। तो m इज इक्वल टू कॉस ए बाय कॉस बी, m बाय 1 इक्वल टू कॉस ए बाय कॉस बी। मैंने रिजल्ट को ऑब्जर्व किया, रिजल्ट को जब मैंने ऑब्जर्व किया ना, आई एम गेटिंग द टर्म देयर m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। और जब मैं m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 देखता हूं तभी मेरे दिमाग में क्लिक करता है कि m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 इट इज m बाय 1 इज इक्वल टू कॉस ए बाय कॉस बी। आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर। कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो, राइट। ऑलरेडी यू आर हैविंग द आइडिया, मैंने आपको समझाया ड्यूरिंग द क्वाड्रेटिक एंड आई थिंक एक आध बार और ज़रूरत लगी है दैट इफ a बाय b इज इक्वल टू c बाय d। जो लोग नहीं थे फिर से देख लें, इफ a बाय क्लास 9 10th में होता है ना a बाय b इक्वल टू c बाय d, that is a plus b upon a minus b is equals to c plus d upon c minus d। कैसे आ जाता है वो भी मैंने आपको बताया था, एडिंग प्लस 1 बोथ साइड्स एक रिजल्ट होगा, टेक द एलसीएम, देन सब्ट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड्स फिर एक रिजल्ट होगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, यू विल बी गेटिंग दिस। बट ये रिजल्ट आपको कई बार लग सकता है। यहाँ पर भी आपने जब m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 देखा और आपने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और आपने कहा सी एंड डी अप्लाई किया, m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक, m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 cos a प्लस, अगेन देखो बात घूम फिर के तो सेम ही रहेगी उधर भी। इफ यू आर सॉल्विंग दिस तब भी cos a प्लस cos b cos a माइनस cos b लगाना होगा, यहाँ पर भी लगाना होगा। 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, 2 sin a प्लस b बाई 2 sin b माइनस a बाई 2, ये 2 कैंसिल हुआ। ठीक, अभी रिजल्ट अपना आने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। cos a प्लस बी बाई 2 अपॉन साइन a प्लस बी बाई 2 विच इज नथिंग बट m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos थीटा बाय साइन थीटा cot a प्लस b बाई 2। cos a प्लस b बाई 2 अपॉन sin a plus b by 2 is cot a plus b by 2, and just observe here cos a minus b by 2 upon sin b minus a by 2. Sin minus theta is minus sin theta, but cos minus theta is cos theta, तो cos a minus b by 2 can also be written as b minus a by 2, तो कोई परेशानी नहीं है। So cos theta by sin theta will again become cot theta, it can be written as cot b minus a by 2, and here is your result। cot को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 1 बाय 10 हो जाएगा, या 1 बाय 10 थीटा कर दीजिएगा, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। ठीक है, तो दोनों अप्रोच समझ में आ गई आपको कि इफ यू टेक द RHS एंड इफ यू प्लेस द वैल्यू ऑफ m यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट, या दैट द गिवन इंफॉर्मेशन इज m इज इक्वल्स टू cos a बाय cos b, दैट्स फाइन, इतनी इंफॉर्मेशन भी सफिशिएंट है। C and D अप्लाई कर दिया एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट अगेन। Now 3 questions are there, simple questions, but you have to find out the values for these 3 questions. So बताइए क्या किया जाए फॉर द फर्स्ट वन। साइंस एंगल से उनको ऑब्जर्व करो, पाई बाय 18, पाई बाय 9, 7 पाई बाय 18 एंड 4 पाई बाय 9। So what we can do then? Sin square pi by 18, ये sin square 7 pi by 18, this is sin square pi by 9, this is sin square 4 pi by 9। क्या किया जा सकता है?
कैसे पेयरिंग करें? साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस व्हाट यू सजेस्ट? 4 पाई बाय 9 क्या किया जाए उसका? 4 पाई बाय 9 को क्या? अच्छा, ओके 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 ओके, व्हाट यू हैव डन हियर, यू हैव केप्ट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री. पाई रेडियन को इन्होंने 180 डिग्री रखा और 180 डिवाइडेड बाय 18 इट विल बिकम 10 डिग्री. और ये 4 पाई बाय 9, तो 4 पाई बाय 9 दैट मीन्स पाई इज 180, 180 बाय 9 दैट विल बी 20 इंटू 4, 80 डिग्री. ठीक है, तो आप समझ गए साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, और साइन स्क्वायर 80 कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस थीटा. फाइन. अब मैं रेडियन के टर्म्स में अगर मैं सॉल्व करता हूं इसको, ठीक सोचा आपने, बिल्कुल ठीक सोचा है. साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9, इट इज पाई बाय 18. पाई बाय 9 मीन्स हाउ मेनी डिग्री? 180 बाय 9, 20, एंड दिस इज 7 पाई बाय 18, 70, 20 और 90, 20 और 70, राइट. तो जो आप सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं. यहाँ पे पेयरिंग हो रही है 10 डिग्री और 80 डिग्री, 20 डिग्री और 70 डिग्री, बट मैं इसको जरा रेडियन के टर्म्स में सॉल्व करता हूँ. फोर पाई बाय 9 कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय व्हाट? 18. चेक करिए जरा. पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 18 नहीं, ये हो जाएगा 18, 9 पाई माइनस पाई, 8 पाई बाय 18, बढ़िया. और 8 पाई बाय 18 इज कमिंग एज 4 पाई बाय 9, बिल्कुल ठीक है. अरेंज किया ना आपने, दिस एंगल इज पाई बाय 18, तो दिस एंगल इज पाई बाय 18 और ये 4 पाई बाय 9. आपने ठीक सोचा था, कुछ भी दिक्कत नहीं उसमें. 10 डिग्री, 20 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग आपने अरेंज किया, ठीक है. This sin square 4 pi by 9 can be written as pi by 2 minus pi by 18. If you take the LCM, it is becoming 8 pi by 18, which is nothing but 4 pi by 9. Perfect. Plus sin square pi by 9 plus sin square pi by 2 minus pi by 9. If you take the LCM again, 9 pi minus 2 pi, 7 pi by 18. कैसे सोचा? जब आपने साइन 70 डिग्री और 20 डिग्री की पेयरिंग करी थी, तो 70 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 माइनस 20, और साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा. दैट्स व्हाट वी हैव यूज्ड हियर. बट अब रेडियन में आना चाहिए हमको, कन्वर्ट करना है, सारी बातें रेडियन के टर्म्स में समझ में आना चाहिए. साइन स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 9 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 9. ठीक है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, एंड 1 प्लस 1 इज नथिंग बट 2. और अब हमें कंफर्टेबल होना होगा, और हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, हम समझ में आएगा आपको कब 90 माइनस थीटा, कब 180 माइनस थीटा, हाउ टू राइट पाई बाय 2 माइनस थीटा, हाउ टू राइट इन टर्म्स ऑफ पाई माइनस थीटा, दैट विल डेफिनेटली डिस्कस. Now look for the second one. Again you have to find out the value of 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. So सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है शायद वो यही आना चाहिए that we are going to apply here 2 cos A cos B, है ना. 2 cos, at least we are going to attempt in that direction. अब वो रिजल्ट आना नहीं आना ठीक है, नहीं आएगा तो we'll try in some other direction. कोशिश तो करेंगे ना हम. 2 cos A cos B, तो 2 cos A cos B which is cos A plus B plus cos A minus B, cos A plus B plus cos
ए माइनस बी, ठीक, it will become cos 10 pi by 13 plus pi minus 9 pi, that will be minus of 8 pi. Cos minus theta is cos theta. 8 pi by 13 plus cos ठीक। दोस्तों जब पेयरिंग करने की बात यहाँ पे आएगी तो 10 पाई बाय 13 और 3 पाई बाय 13 और 8 पाई बाय 13 और 5 पाई बाय 13, क्योंकि 10 और 3 13 हो रहा है, 8 और 5 13 हो रहा है। हम जरा अरेंज करके देखें अगर, तो बात समझ में आएगी। या 10 और, ठीक है, क्या किया जाए फर्दर, क्या किया सकता है, थोड़ा सा सोचेंगे तो बनेगी बात। देखो, इट इज 3 पाई बाय 13 ईयर, इट इज 10 पाई बाय 13 ईयर। थ्री पाई बाय 13 को लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं, 3 पाई बाय 13, 13 पाई माइनस पाई 12 पाई। ये सजेस्ट कीजिए क्या लिखा जाना चाहिए, 3 पाई बाय 13 और ये 10 पाई बाय 13 और इट इज 8 पाई बाय 13 एंड इट इज 5 पाई बाय 13। क्या किया जा सकता है? अगर मैं पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा के टर्म्स में लिखना चाहूँ या पाई प्लस थीटा के टर्म्स में, जरा सा सोचें, थोड़ा सा सोचें क्या किया सकता है। यस, जस्ट थिंक ओवर दैट। पाई माइनस 10 पाई बाय 13, तो चेक करिए ठीक कहा है इन्होंने, थोड़ा सा आप लोग सोचें। 3 पाई बाय 13, हमको ये तो समझ में आ रहा है 10 पाई बाय 13 और ये 3 पाई बाय 13 की पेयरिंग बन रही है, 10 और 3 13। ये 8 पाई बाय 13 और 5 पाई बाय 13 की पेयरिंग बन रही है, 8 और 5 13। 3 पाई बाय 13 कैन बी रिटन एज minus 10 pi by 13. If I take the LCM 13 pi minus 10 pi, 3 pi बात है। At the same time ये 8 और 5 वाली बात देख लो, 5 pi by 13 can be written as, 5 pi by 13 को लिखा जा सकता है when you take the LCM 13 pi minus 8 pi, that will be 5 pi, 5 pi by 13। ये है हिसाब किताब। बोले सर उससे क्या होगा, उससे ये होगा, देख लो। when we say cos 3 pi by 13, that will be equals to cos pi minus 10 pi by 13। पहले समझ लीजिए प्लीज, cos 180 minus theta minus of cos theta। same is happening for the second one, cos 5 pi by 13 is equals to cos pi minus 8 pi by 13 minus of cos 180 minus theta is nothing but minus cos theta, cos 3 pi by 13 और ये cos 10 pi by 13, ये कैंसिल होती है टर्म्स। cos 5 pi by 13 और cos 8 pi by 13, ये दोनों टर्म्स कैंसिल होती है एंड फाइनली यू आर गेटिंग 0. What you have done in the question? First of all, you have applied 2 cos A cos B, which is cos A plus B plus cos A minus B. पहले तो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और उसके बाद फिर एंगल को ऑब्जर्व किया। 10 पाई बाय 13, 8 पाई बाय 13, 3 पाई बाय 13, 5 पाई बाय 13। आपने ये ऑब्जर्व किया कि 10 पाई और 3 पाई 13 पाई, 8 पाई और 5 पाई 13 पाई। ठीक है, बात बनती है। हमने सोचा क्या कर सकते हैं, तो 3 पाई बाय 13 कैन बी रिटन एज पाई माइनस थीटा, पाई माइनस 10 पाई बाय 13 और cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। 5 पाई बाय 13 को लिख दिया पाई माइनस 8 पाई बाय 13, फाइन, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। ठीक, नाउ लुक फॉर द थर्ड वन,
You have to find out the value of cos square pi by 16 plus cos square 3 pi by 16 plus cos square 5 pi by 16 plus cos square 7 pi by 16. Again if you observe here pi by 16 और 7 pi by 16, हमें लगता है पाई और 7 पाई 8 पाई, और here 3 pi 5 pi that will be 8 pi. ठीक है ना. 7 pi by 16 can be written as, ये पेयरिंग वाली बात हमें कुछ समझ में आती है, बट हम क्यों क्या करने वाले हैं. 7 pi by 16, इफ यू ऑब्जर्व दिस एंगल 7 pi by 16, अब मैं चाहता हूँ 7 pi by 16 और pi by 16 में कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया जाए, पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा, ऐसा करके 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इस टर्म्स में कुछ. सो 7 pi by 16 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16 लिखा जा सकता है. और बोले सर कैसे सोचा, ये तो सोचना ही होगा ना हमें. When we are observing pi by 16 और 7 pi by 16, that sum is pi और 7 pi, sum is 8 pi. 3 pi और 5 pi, sum is 8 pi. तो हमने क्या किया, we have written 7 pi by 16 as, इन दोनों में हमें ये जम रहा है कुछ पेयरिंग हो सकती है, तो that 7 pi by 16 can be written as pi by 2 minus pi by 16. If you take the LCM, तो ये हो जाएगा 16, 8 pi minus pi that will be 7 pi. ठीक. At the same time 5 pi by 16 और 5 pi by 16 को भी लिखा जा सकता है. क्या लिखा जा सकता है 5 pi by 16, pi by 2 minus 3 pi by 16. If you take the LCM it is 16 there, 8 pi minus 3 pi which is 5 pi by 16. बात बनती है. ठीक. तो कुल मिला के cos 7 pi by 16 is nothing but cos pi by 2 minus pi by 16 cos 90 minus theta sin theta. Cos 5 pi by 16 is equals to cos pi by 2 minus 3 pi by 16 cos 90 minus theta sin theta. ठीक है दोस्तों, ये बन जाएगा cos square pi by 16 plus this cos square 7 pi by 16 is nothing but, sorry it is 16 है ना. cos square 7 pi by 16 is nothing but sin square pi by 16 plus cos square 3 pi by 16 प्लस ये cos square 5 pi by 16, ये देख लो आपके सामने बना के लिखा है प्रॉपर्ली, sin square 3 pi by 16. तो cos square theta plus sin square theta 1, cos square theta plus sin square theta 1, 1 plus 1 2. ये हम केवल समझ रहे हैं रेडियंस के टर्म्स में, जब दिए एंगल तो कैसे मैनिपुलेशन करना. पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा पाई बाय 2 माइनस थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा, और जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे कंफर्ट लेवल आपका बढ़ता जाएगा कि किस ढंग से आपने पेयरिंग करी है, कैसे कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म्स में आ गया. सर कैसे लिख दिया आपने, सर अभी तो हमसे बन नहीं रहा, बनेगा. Now look for a different question but based on the same pattern. 1 plus cos pi by 8 into 1 plus cos 3 pi by 8 into 1 plus cos 5 pi by 8 into 1 plus cos 7 pi by 8. We have to prove that it is equals to 1 by 8. In fact, it is a multiplication of these four terms. Angles को अगर आप ऑब्जर्व करें, cos pi by 8, cos 3 pi by 8, cos 5 pi by 8, cos 7 pi by 8. The angles are pi by 8, 3 pi by 8, 5 pi by 8 और 7 pi by 8. ध्यान से देखिएगा, pi by 8, 3 pi by 8, 5 pi by 8 और 7 pi by 8. If I ask you क्या लगता है किन एंगल्स में पेयरिंग वाली बात समझ में आती है आपको, तो इतनी समझ में आना चाहिए आपको. फलाश सुनिएगा, pi by 8 और 7 pi by 8 है ना,
सम पाई और 7 पाई दैट विल बिकम 8 पाई, और 3 पाई और 5 पाई दैट विल बिकम 8 पाई। तो हम उस डायरेक्शन में काम करते हैं। 7 पाई बाय 8 कैन इजीली बी रिटर्न एज पाई माइनस पाई बाय 8। इसमें तो कुछ खास नहीं। 7 पाई बाय 8 कैन बी रिटर्न एज पाई माइनस पाई बाय 8, और 5 पाई बाय 8 कैन बी रिटर्न एज पाई माइनस 3 पाई बाय 8, लिख सकते हैं। ठीक। सो cos 7 पाई बाय 8 is equals to cos pi minus pi by 8 cos 180 minus theta minus cos theta। अब आप 180 माइनस थीटा कोई गलत सलत लिख के आ जाओगे तो फिर कोई कुछ आगे बढ़ा भी नहीं पाएगा उसमें। cos 5 pi by 8 is equals to cos pi minus 3 pi by 8 and again cos pi minus theta is minus cos theta। ठीक। cos 7 pi by 8 उसको प्लेस कर दीजिएगा माइनस, इट विल बिकम, देखो 1 प्लस cos pi by 8 एज इट इज, 1 प्लस cos 3 pi by 8 एज इट इज, 1 प्लस cos 5 pi by 8, तो cos 5 pi by 8 is becoming minus of cos 3 pi by 8, तो 1 minus cos 3 pi by 8 into 1 minus 7 pi by 8 is minus cos pi by 8, right? What is happening now? A plus b, a minus b, a square minus b square, a plus b, a minus b, a square minus b square, right? वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, ऑल दी स्टेप्स आई हैव सॉल्व्ड, नाउ यू हैव टू फाइंड द फाइनल रिजल्ट। अब सोचिए जरा क्या किया जा सकता है यहाँ पे, जस्ट थिंक ओवर दैट। यस, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8, व्हाट नेक्स्ट कैन बी डन? इतना हमने सॉल्व किया, ठीक है, आई थिंक क्लियर है। पाई माइनस थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करते हुए साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। बोले सर अब आगे क्या कर सकते हैं इसमें? देखो 3 पाई बाय 8 कैन बी रिटर्न एज, हियर एंगल इज पाई बाय 8, एंगल इज 3 पाई बाय 8। इन ऑल आप देखो क्या हुआ, 4 एंगल्स वेर देयर। जब इनिशियली क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया तो पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8, 7 पाई बाय 8, हमने इसको रिड्यूस किया। सुन लीजिएगा, जब हमने रिड्यूस किया तो हमने रिड्यूस करके इसको 2 एंगल्स में ले आए, पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8। अभी हम क्या करते हैं, 3 पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। चेक करिएगा, 3 pi by 8 can also be written as pi by 2 minus pi by 8. If I take the LCM, it is 4 pi minus pi, that is 3 pi by 8, right? So 3 pi by 8 can be written as pi by 2 minus pi by 8. So sin square 3 pi by 8. ध्यान से देखिएगा, इधर लिख रहा हूं मैं, sin square pi by 8, sin 3 pi by 8, sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 क्या बन जाएगा, ये cos स्क्वायर पाई बाय 8। अब देखो तुम लोग, 4 एंगल से स्टार्ट किया था, 4 को 2 में रिड्यूस किया, 2 को भी हमने 1 में रिड्यूस कर लिया। अब एंगल क्या है यहाँ पे, पाई बाय 8 और पाई बाय 8 है ना। बोले सर अब इसका क्या किया जाए आगे? सर तो पाई बाय 8 तो आइडिया नहीं है सर हमें क्या है, बट वी आर हैविंग द आइडिया ऑफ 2 sin a cos a।
साइन 2 है, ठीक। ये साइन पाई बाय 18 कॉस पाई बाय 18, तो हमें समझ में आता है, सॉरी पाई बाय 8, सॉरी 2 साइन पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 8, 2 साइन है कॉस है, कैन बी रिटर्न है साइन 2 है साइन पाई बाय 4। अरे 2 इंटू पाई बाय 8 विल बिकम व्हाट, पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 हम जानते हैं 45 डिग्री विच इज 1 बाय रूट 2, ठीक है। बोले सर ये साइन स्क्वायर पाई बाय 8 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 है, तो ठीक है ना, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ठीक, that will become 1 by 4 times 4 sin square pi by 8 cos square pi by 8 will become sin square pi by 4, sin pi by 4 is nothing but 1 by root 2, और उसका स्क्वायर करोगे तो 1 by 2, result is 1 by 8. That is the approach to solve the question. इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आप लोगों को, एंगल के इतने सारे मैनिपुलेशन, ये सीखना तो होगा लेकिन हमें, ठीक है ना। Now look for the question. You have to find out the value of sin raised to power 4 pi by 8 plus sin raised to power 4 3 pi by 8 plus sin raised to power 4 5 pi by 8 plus sin raised to power 4 7 pi by 8. Again, if you observe the angles as we have done in the previous question, that was there in terms of cos theta, 1 plus cos pi by 8, 1 plus cos 3 pi by 8, 1 plus cos 5 pi by 8, 1 plus cos 7 pi by 8. Now it is there in terms of sin theta. But we observed that pi by 8, 3 pi by 8, 5 pi by 8, 7 pi by 8. First of all, we can definitely write that 7 pi by 8 is pi minus pi by 8, and 5 pi by 8 can also be written as pi minus 3 pi by 8 लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं, अभी अभी लिखा भी था हमने। अच्छा दूसरी बात, when we say sin 180 minus theta, cos 180 minus theta is cos 180 minus theta is minus cos theta, but when we say sin 180 minus theta, sin theta. ठीक, sin 7 pi by 8 is equals to sin pi by 8, sin 5 pi by 8 is equals to sin 3 pi by 8, sin raised to power 4 pi by 8. दोस्तों अगर कोई दिक्कत नहीं हो आपको तो 7 pi by 8 is becoming sin pi by 8, so I can definitely write directly twice of sin raised to power 4 pi by 8 plus sin raised to power 4 3 pi by 8. कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी, ठीक है ना, बिकॉज दीज टू टर्म्स आर सेम ना, साइन रेज़ टू पावर 4 7 पाई बाय 8, साइन 7 पाई बाय 8 पहले समझ लीजिए, साइन 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 8, और साइन 5 पाई बाय 8 इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाय 8, सो दीज टू आर सेम, सो अननेसेसरली 4 क्यों लिखेंगे ना, इट इज ट्वाइस ऑफ साइन रेज़ टू पावर 4 पाई बाय 8 प्लस साइन रेज़ टू पावर 4 3 पाई बाय 8. अब again now the angle is pi by 8, 3 pi by 8 in the previous question, again we have solved like this only. So 3 pi by 8 और pi by 8 को ऑब्जर्व किया मैंने, और 3 pi by 8 कैन बी रिटर्न एज pi by 2 माइनस pi by 8, 3 pi by 8 को लिखा सकता है pi by 2 माइनस pi by 8, so sin 3 pi by 8 is equals to sin pi by 2 minus pi by 8 sin 90 minus theta cos theta, sin 90 minus theta is cos theta.
सकते. Sin 3 pi by 8 that has been written as cos pi by 8. It is cos raised to power 4 pi by 8. अभी तक हमने फर्स्ट 4 एंगल्स वेयर देयर उनको 2 में रिड्यूस किया और 2 को 1 में रिड्यूस कर लिया. अब इसको गलती से भी 1 मत कर देना आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ऑब्वियसली नहीं, कोई ऑब्वियसली नहीं, ऐसा कोई ऑब्वियसली नहीं है ना. इट इज साइन रेज़्ड टू पावर 4 पाई बाय 8 प्लस कॉस टू द पावर 4 पाई बाय 8. इट इज नॉट 1. तो कैसे सॉल्व करें इसको? देखो if it is a raised to power 4 plus b raised to power 4, so a raised to power 4 plus b raised to power 4 can be written as a square plus b square and whole square of that. A raised to power 4 plus b raised to power 4 plus twice of a square b square minus of twice of a square b square. ठीक. So we can definitely write sin raised to power 4 pi by 8 plus cos raised to power 4 pi by 8 is equals to sin raised to power pi by 8 sin square pi by 8 plus cos square pi by 8 whole square minus twice of sin square pi by 8 into cos square pi by 8. ठीक. 2 टाइम्स इज देयर. आई टेक केयर ऑफ दिस 2. वो तो है, मैं केवल इस पर्टिकुलर इस टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है. हाँ, अब ऑब्वियसली जरूर आप कह सकते हैं दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. इसमें कोई परेशानी नहीं है. सो इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 स्क्वायर ऑफ दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 cos square pi by 8. And again if you observe, as we have done in the previous question also, sin 2a is equals to 2 sin a cos a. किया था ना अभी प्रीवियस क्वेश्चन में. इट इज 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाय 8 cos स्क्वायर पाई बाय 8. तो 2 sin पाई बाय 8 cos पाई बाय 8 होता तो मैं उसको डायरेक्टली sin 2 इंटू पाई बाय 8 लिख देता. 2 sin a cos a sin 2a लिख देता. यहाँ पे स्क्वायर है. ठीक है, होने दीजिए. मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय 2 so that ये जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, that will become 1 minus 1 by 2. डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? मैंने समझाया था आपको 1 इंटू साइन स्क्वायर 2 इंटू पाई बाय 8. फाइन. सो इट इज बिकमिंग वही अगेन साइन 2a इक्वल्स टू sin 2a equals to 2 sin a cos a. So sin square 2a that will be 4 sin square a cos square a. ये बन जाएगा 1 minus sin square pi by 4 sin square pi by 4 sin pi by 4 is 1 by root 2. स्क्वायर करोगे तो 1 by 2. 1 by 2 is already there. 1 by 2 into 1 by 2. 1 minus 1 by 4. 4 minus 1 3 by 4. लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 3 by 4 रिजल्ट ना लिख दें. ऑप्शन में 3 by 4 तो प्रेजेंट रहेगा. यू हैव टू टेक केयर दैट इट इज 2 इंटू साइन रेज़्ड टू पावर 4 प्लस कॉस रेज़्ड टू पावर 4. मैंने केवल साइन रेज़्ड टू पावर 4 प्लस कॉस रेज़्ड टू पावर 4 दैट आई सॉल्व्ड हियर इज कमिंग एज 3 by 4. तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 2 इंटू 3 by 4 विच इज 3 by 2. ये रिजल्ट है ना. अभी क्लियर है शायद आप लोगों को? Why I have multiplied and divided by 2 so that ये 2 sin a cos a and square of that बन जाए. 4 sin square a cos square a.